بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ارسلان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہوا ہے. اس وبا کی وجہ سے لوگوں کو کاروبار جو ہے وہ بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کافی اوپر چلی گئی ہے. مہنگائی کس وجہ سے زیادہ ہوتی ہے اور کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں کہ مہنگائی ہوتی ہے ملک میں، یہ بات پھر کبھی کریں گے ہم. مگر آج سیاست سے الگ ہو کر یہاں ہم کاروباری حضرات سے بات کریں گے اور لوگوں سے بھی بات کریں گے جو یہاں پہ آج کسٹمر موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کنزمپشن ٹرینڈ پہ بات کریں گے اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو آئیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ گلاب خان. نام کیا ہے آپ کا؟ ثاقب نہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا محمد مسکین نام ہے. جو وبا تھی اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار پہ کیا اثر پڑا؟ سر ہمارے کاروبار پہ تو بہت اثر پڑا ہے کورونا کے لحاظ سے، کیونکہ لوگ آمد و رفت جب کم ہوتی ہے تو کاروبار بھی کم ہو جاتا ہے. کیونکہ کاروبار پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ کاروبار اس لیے چلتا ہے کہ عوام کے ذریعے تو چلتا ہے. جب عوام آتی ہے تو سامان لے کے جاتی ہے تو ہمارا کاروبار بھی چلتا ہے. جب لوگ نہیں آئیں گے، آمد و رفت نہیں ہوگی، عوام نہیں آئے گی تو سامان نہیں لے کے جائیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا؟ وہ تو ٹھپ ہو جائے گا. اس کے اثرات سے تو کاروبار پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے جی. کاروبار ہمارے زیرو پہ آ گئے ہیں. اسکول بند ہوں گے، ہمارے معاملات سارے چلتی اسکولوں سے ہیں. اسکول بند ہونے کی وجہ سے کاروبار زیرو پہ آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو بندے یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بیچارے بھی پھر کام پہ نہیں آ سکتے. دکان ابھی آپ دیکھیں یہ نئے سیشن سٹارٹ ہونے کے دن ہے. آج تاریخ آپ دیکھ لیں 8 مارچ ہے. 8 مارچ سے نئی کلاسز شروع ہوتی ہیں اور آپ ابھی بک شاپ میں کھڑے ہیں. دکان میں صرف ہم لوگ ہی ہیں، بچے کوئی بھی نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کوئی بھی نہیں ہے. جو وبا ہے اس کی وجہ سے آپ کے کاروبار پہ چھوٹا سا جو آپ کا بزنس ہے رن کر رہے ہیں، اس پہ کیا اثر پڑا ہے؟ سر میں تو یہ گزارش کروں گا کہ وبا تو تقریباً پچھلے سال میرے خیال میں مارچ کے مہینے میں آئی تھی نا، لیکن جہاں تک یہ کاروبار کا مسئلہ ہے یا بے روزگاری کا مسئلہ ہے یا جو ملک کے حالات خراب ہیں، یہ موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے. جو حکومت وعدے کر کے آئی تھی ان لوگوں کے ساتھ، انہوں نے منافقت کی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے اور پتہ نہیں وہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس لیے مطلب کام کر رہے ہیں. میری 60-70 ہزار روپے کی مہینے کی سیل تھی، اب میری 2000 کی سیل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مہنگائی اور یہ سارا کچھ. اب جس ملک کے اندر مہینے میں 12 مرتبہ بجٹ پیش ہو، مہینے میں 3 مرتبہ بجٹ پیش، سال میں 12 مرتبہ بجٹ پیش ہو، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ ہر ہفتے میں 2 دفعہ مہنگائی ہو، اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ یہ اس حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں. یہ اس حکومت کو ہمارے اوپر سوار کیا گیا ہے، کہاں کہ ساری کی ساری عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. اب ہر آدمی، آپ بڑے سے بڑے دکاندار کے پاس جاؤ، بڑے سے بڑے دکاندار سے جا کر پوچھو تمہارا کیا حال ہے. اب دکاندار جو مہینے میں کرائے کا وقت آتا ہے وہ کرایہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ اس حکومت سے ہماری جان چھڑائے. انشاءاللہ یہ ملک خوشحال رہے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. چاچو نام کیا ہے آپ کا؟ علی اصغر جی. اچھا علی اصغر صاحب، ہمیں بتائیں کہ آپ کے اس چھوٹے سے کاروبار پہ کیا اثر پڑا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑا ہے جی. کیا کیا؟ پہلے جب شروع ہوا پھر تو اس کے بعد ہم نے 3 مہینے اور 10 دن ہم نے کام ہی نہیں کیا. اچھا. 1 روپے کا کام بھی نہیں ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے قرض لیا، بس قرض لے کے بس 3 مہینے گزارے ہیں. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے کام شروع کیا تو یہ سبزی جو تھی یہ پہلے کے ریٹ پر نہیں تھی، پھر مہنگی تھی اور بازار کے اندر کام وغیرہ بھی جو ہے بہت نرم تھا، تو اس لیے فرق تو بہت پڑا ہے. اگر دوبارہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو آپ اس چیز کو کس طرح سے؟ متعمل نہیں ہے، اس کے متعمل جو نہیں ہے، اس کے لائق جو ہے نا نہیں ہے. اب لاک ڈاؤن اگر لگ جائے تو اس کے پھر بھوکا ہی مرنا ہے بس سب نے، کیونکہ غربت زیادہ ہے، غریب لوگ مزدور لوگ زیادہ ہیں اور اس لیے جو ہے نا بہت 1400 روپے کا آٹے کا توڑا ملتا ہے، تو یعنی کہ آدھی قیمت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے 800 روپے کا تھا، اس کے بعد جو ایک دم جو ہے 1400 کا ہو گیا. تو غریب کا آٹا ہی ہے، اگر آٹا بھی چھینا گیا تو پھر غریب کس طرح زندہ رہے گا؟ تو اگر گورنمنٹ ان کیس لگا لیتی ہے لاک ڈاؤن تو پھر کیا ہوگا؟ بس اگر لگا لیتی ہے تو پھر جو ہے نا پریشانی ہی ہے بس عوام کے لیے، بس اور کیا ہو سکتا ہے. اس کے لائق نہیں ہے.
ये बर्दाश्त करने के काबिल जो है ना ये अवाम नहीं है, क्योंकि बहुत गुर्बत है बस, इसलिए लॉकडाउन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। कारोबार पे बहुत असर पड़ा है जी, 2 दिन लॉकडाउन भी हो गए तो पहले ही कारोबार बहुत ख़राब है, तो अभी तो 2 दिन लॉकडाउन भी हो गए, 2 दिन ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई है, उस वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। हम तो मज़दूर लोग हैं, किस तरह देखेंगे, फिर आप समझ लें, फिर अपने आप को जो है तो ख़ुदकुशी करने वाली बात है। हालात इस कदर, महंगाई इस कदर है कि इंसान सोच से बाहर है ना, फिर कुछ नहीं कर सकते ना जी, इधर भी मज़दूर हैं तो उधर भी मज़दूर हैं, काम हुआ ना तो क्या करेंगे, लॉकडाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे। सर ये बड़ा इफेक्ट पड़ा है ना, ऐसे कि हम जब चीज़ लेने जाते हैं ना तो पिछली बार मतलब लाइक हमने कोई चीज़ ली है, ऑलरेडी ली हुई है, वो जाते हैं अगली बार उससे लेने के लिए तो वो नया रेट बताता है, उससे जब रीज़न पूछी जाती है तो वो कहते हैं यार ये कोरोना की वजह से और ये टैक्सेस ज़्यादा हो गए, फ़लाँ हो गया फ़लाँ हो गया, मतलब वो अपनी मर्ज़ी की मनपसंद किस्म के रेट जो है हमारे आगे रख लेते हैं। फिर हमें ज़रूरत तो है ऑब्वियसली, फिर हमें लेनी होती है चीज़ तो हम फिर उसी तरह लेते हैं जिस तरह महंगे दामों लेते हैं। हाँ लेना तो पड़ता है, ज़ाहिर है सर्कल है, किसी तरह तो उसको चलाना पड़ता है। पहले कोरोना हुआ था 2-3 महीने होटल हमारा बंद था, सारे गरीब लोग हैं, इधर दिहाड़ीदार आदमी होते हैं। अभी भी हम कोरोना SOPs के साथ चल रहे हैं, पार्सल दे रहे हैं सालन, तो सब दिहाड़ीदार लोग हैं, तो हम कोरोना को मुकम्मल SOPs के तहत चल रहे हैं, पार्सल सिस्टम दे रहे हैं, गाहक को बिठा के नहीं शापर में डाल के दे रहे हैं। इस तरह दिहाड़ीदार लोग हैं, पहले भी काफ़ी परेशान रहे हैं लोग, तो अभी फिर ये वबा आ गई है, आगे रमज़ान भी है, तो हर आदमी मेहनती है, इधर दिहाड़ीदार आदमी है, परेशानी बनी है। ठीक है, हमारा तो खाने पीने का कारोबार है, ये तो लोगों ने करना ही करना है, ठीक है। बाकी जो बाज़ार है वो राल जैसे कपड़े का या दुकानें हैं या स्टेशनरी का कारोबार है जिसका स्कूल के साथ, उनके पे फ़र्क पड़े, हमें इतना नहीं फ़र्क पड़ा। देखिए लॉकडाउन से तो दिहाड़ीदार तबका जो मज़दूर हैं जो हमारे साथ काम करते हैं इनको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फ़ायदा कुछ नहीं है लॉकडाउन का, SOPs पे अमल करें बस, ठीक है, मास्क पहने, लोग भी एहतियात करें। हमारे कारोबार पे ज़्यादा असर तो ये पड़ा है, मसलन कस्टमर जो सूट दे के जाते हैं ना जी, फिर वो आते ही नहीं हैं, क्योंकि लोगों के हालात हैं नहीं है कि वो आएँ और मसलन हमसे चीज़ वसूल करें। हमारे लिए तो ये मसला है, हमने अपने पॉकेट मनी से जो है ना वो सारा खर्च करके उसके बाद बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। देखें सर, लॉकडाउन से हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है, हम रोज़मर्रा काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। अगर ये हालात रहे तो फिर हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी। वैसे हमारे पास जो अपने वर्कर हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है हम काम करते हैं, उनको परसेंटेज देते हैं। अगर यही हालात रहे तो परसेंटेज और मसलन हम पे भी चढ़ जाएगी और वो काम उनका रुका ही रहेगा, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है जी। तो बेनिफिट तो ज़ाहिर है लॉकडाउन से किसी को नहीं होगा, तो आप बज़ात ख़ुद क्या देख रहे हैं कि आपको किस किस तरह फिर मुश्किलात जो हैं सामना करना पड़ेंगी, आप बज़ात ख़ुद आपकी ज़ात पे क्या मुश्किलात आएंगी लॉकडाउन की वजह से? देखें जी, हमारे लिए तो ये मसला बनेगा, कस्टमर आएगा तो हम काम करेंगे, ठीक है। जब कस्टमर नहीं आएगा तो हम क्या काम करेंगे फिर? इसके अलावा तो हमें खामोश रहने के अलावा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करें और इस तरह के मसलन हालात बनाएं कि जिसमें हम भी चलते रहें और गवर्नमेंट भी चलती रहे और कोरोना का सिस्टम भी चलता रहे। कोरोना भी चलता रहे, हाँ सर, चलता रहे ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको क्या लगता है ये ताजर हज़रात की वजह से महंगाई ज़्यादा हुई है या ये ओवरऑल महंगाई है? नहीं, कुछ ताजर हज़रात की वजह से, कुछ हुकूमत की तरफ से भी है। ताजर हज़रात की वजह से किस तरह? नहीं है ना, इसके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है इंतज़ामिया का, जैसा चाहे ऐसा भेजते हैं बस। अच्छा, ताजर इंतज़ामिया का कंट्रोल नहीं है और उसकी वजह से ये महंगाई होती है, ठीक है, शुक्रिया। सर, इस वबा से जो है कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। पिछले साल भी यही हालात, जिनकी आमदनी ज़्यादा थी वो लोग बहुत कम हो गए थे, और जैसे कि हमारा पहले हो रहा था 20,000 13,000 का काम हो रहा था, वो अभी आ गया 10,000 5,000 इस तरह का हो गया ना। तो अभी हर एक के हालात, जो गरीब तर लोग हैं उनके हालात और ज़्यादा कम हो रहे हैं, इसलिए इस वबा से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो गए। लोग अभी जाके सुधरे थे, लेकिन फिर जाके अभी इस साल फिर लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं ये लोग। दोबारा लॉकडाउन लग गया, हम तो पहले ही मुतासर हुए हैं, लेकिन दोबारा लॉकडाउन लग गया तो फिर हम तो ज़्यादा ही मुतासर हो जाएंगे, क्योंकि लोग आना कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तीसरे ऐसे पे कारोबार आ जाएगा। स्कूलों में जितने SOPs पे अमल होते हैं, इतना बाज़ार में किसी जगह पे भी नहीं होता। वो बच्चों का तालीमी सिलसिला भी रुका हुआ है। तालीम के बगैर तो कोई चीज़ भी किसी जगह भी तरक्की नहीं कर सकती, सवाल ही नहीं बनता। हुकूमत को चाहिए इसका ख्याल करें। माशियत दिन ब दिन ख़राब हो रही है, महंगाई हो रही है, 2 दिन दुकानें बंद होने से बहुत बड़ा कारोबार पे असर पड़ता है, और बच्चों के स्कूलों को जो है SOPs के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी जाए। दोबारा लॉकडाउन लग जाता है तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? हम लोग तो बस यही समझते हैं कि पिया जो थोड़ा सा चल रहा है वो बिल्कुल जाम हो जाएगा। हम तो उसके आदमी नहीं है कि दोबारा से लॉकडाउन लग जाए। अल्लाह की मेहरबानी से हमारे मानसर हमें
जो इसकी कोविड की रेशो है वो भी बहुत कम है, तकरीबन 8% तक भी नहीं है, 2-3% तक है ये। उसके बावजूद यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस बनाई हुई है, तो चाहिए कि उसको फॉलो अप करें, जितनी रेशो है उस हिसाब से अपनी जो है ला जो है वो हम पे इम्प्लीमेंट करें। खुशहाल होगा, पहले भी खुशहाल था। हमने यहाँ पे मैं काम करते हुए तकरीबन सन 81-82 में मैं आया हूँ बाज़ार में, मैंने इतने बात नहीं देखे जो पीटीआई के दौर में मैं इतने बुरे हालात देख रहा हूँ। अब जहाँ तक कोरोना की बात कर रहे हो, तो कोरोना जो है ना, इतनी बीमारी इतनी नहीं थी जितनी लोगों के अंदर इन्होंने टेंशन डाल कर अब हर आदमी जो है ना डिप्रेशन का मरीज़ हो चुका है, हर आदमी पागल हो चुका है। एक तो बेरोज़गारी, एक कारोबार नहीं, एक इन्होंने पता नहीं उस इतना ही शोर बना दी, इतना कुछ कर दिया कि जिसकी वजह से लोगों के हालात ही बिगड़ गए। तो अल्लाह हमारी जान छुड़ाए, इस हुकूमत से हमारी जान छूटेगी तो इंशाअल्लाह मुल्क के हालात ठीक होंगे। अच्छा, तो अगर लॉकडाउन का दोबारा से कहा जा रहा है, अगर लॉकडाउन लग जाता है तो फिर क्या आपका कारोबार? देखो जी, हम क्या कर सकते हैं? अगर लॉकडाउन लग गया तो हम क्या अदारे सब एक तरफ, हुकूमत एक तरफ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये बाज़ार के दुकानदार क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते अगर वो लॉकडाउन लगाते हैं। नहीं, ये भी खुद बजाते खुद महंगी नहीं दे रहे। ऑब्वियसली इनको पीछे से इस तरह के रेट्स मिलते होंगे कि आगे लोगों को मतलब ये इस तरह दे रहे ना। ज़ाहिर है अब हर बंदा इतना तो मतलब नहीं कमा सकता, जो उनके मार्जिन्स होंगे ये है कि मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि हम ये कह दें कि ये सिर्फ दुकानदारों की वजह से। ये पीछे से भी मतलब ये जहाँ से आते हैं, जहाँ से इनको मतलब होलसेल टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, वो सारा कुछ वहाँ से आते हुए मतलब बहुत सारे मसाइल पैदा। लिहाजा हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस आगे जो कारोबार है हमारा चलने दें। तो कोरोना अगर वबा है तो इसको अल्लाह पाक ख़त्म करे, अगर कोरोना एक बीमारी है तो इसको अल्लाह पाक शफा दे। तो हमारी तो यही दुआ है। लिहाजा ये मेहरबानी करके ये हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये इस कारोबार हमारे को चलना दें, क्योंकि लॉकडाउन अगर हो गया तो लोग भूखे भी रह सकते हैं, मुतासर भी हो सकते हैं, और घर में बंद हो जाएंगे तो फिर तो क्या मिलेगा? दुकान नहीं खोलेंगे तो लोग सामान कैसे लेके जाएंगे? हमारा तो यही दरख्वास्त है। ख़रीदारी पर यह असर पड़ा है कि पहले जो चीज़ 20,000 रुपये की मिलती थी अभी वो 25-30 हज़ार रुपये की मिलती है। लोगों के इसमें बहुत परेशानी है, ख़ासकर गरीब आवाम जो है उसमें बहुत मसले और बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के लिए। और दूसरा है कि रोज़गार नहीं है, रोज़गार की वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। खुद अपना ज़ाती कारोबार है, हम इस चीज़ में दुकानदारी कर रहे हैं। मसला ये है कि दुकानदार आज जो चीज़ अगर 1,000 रुपये का लाते हैं, कल वो चीज़ 900 रुपये का होता है। अगर आज जो चीज़ 1,000 रुपये का लाते हैं, कल वो 1200-1500 का। उसमें दुकानदारों का क्या कसूर है? ये पीछे से महंगाई है सारा मसला। हाँ जी नाजरीन, तो ये मैंने आपको पूरी एक बाज़ार के मुख्तलिफ़ लोगों से जो कारोबारी थे और इसके साथ साथ कस्टमर लोग थे, इस वीडियो में उनका एक मैसेज बताने की कोशिश की है कि कारोबारी हज़रात जो हैं उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वबा की वजह से। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ जो लोगों की राय थी और कस्टमर की तरफ से जो हमें मैसेज मिला है वो पैगाम देता है, वो ये है कि वबाएँ हैं वो आती रहती हैं, लेकिन हालात ज़िंदगी और जो लोगों की इकनॉमिक कंडीशन होती है उस पर भी लाजमी असर पड़ता है। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखे और लोगों को चाहिए कि वो ख़ुद को फ्लेक्सिबल रखें और जो SOPs आएँ उनको फॉलो करें। और इसके साथ साथ कारोबारी हजरात जो हैं उन्हें चाहिए कि इस दौरान ना जो मार्जिन है उसमें भी थोड़ा मुनासिब हद तक इस चीज़ को लेके जाएँ। और कस्टमर जो हैं, कस्टमर को चाहिए कि वो ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जब बाज़ार में आए तो उन्हें चाहिए कि SOPs फॉलो करें ताकि गवर्नमेंट की तरफ से कम रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं वो हमें देखने को मिलें। तो इसी के साथ यहाँ इस वीडियो का अख्ताम हो जाता है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अरसलान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।